Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads, and in this lecture, we are going to talk about extract based questions of our next poem, that is the Laburnum Top. So, without wasting much of the time, let's move on to the first stanza. पहले stanza को देख लेते हैं, guys, and look at the questions that are given below. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Got it? So this is our first stanza, guys. On the basis of this stanza, we have some questions. Question number one is, what is common between the beginning and ending of the laburnum top? What is the common thing? क्या common है, guys? आपको ये बताना है. तो let me tell you what is the common thing. The common thing is silence, guys. Laburnum tree is found to be silent in the beginning of this poem as well as end of the poem. Got the point? So what is the similarity, guys? Silence is the similarity which is found not only at the beginning of this poem but also at the end of the poem. Got the point? Let's move on to second question, guys. Name the poem. Name the poem. So it's quite simple. The name of the poem is The Laburnum Top. Who is the poet of The Laburnum Top? Guys, this poem has been written by Ted Hughes. Ted Hughes. Got the point? So Ted Hughes is the poet of The Laburnum Top. What kind of seeds does the laburnum tree have? What kind of seeds, guys? Let me tell you, laburnum top or laburnum tree has poisonous seeds. कैसे seeds होते हैं, guys? इसके poisonous seeds होते हैं. Got it? Look at question number 5. What has happened to the seeds of the laburnum tree? क्या हुआ है इनके seeds के साथ, guys? They have fallen. They have fallen. So these are first 5 questions from stanza number 1. I hope it is getting clear to all of you. If it is doing, we would request you to subscribe to our channel. Do press the bell icon so that you can get the timely updates as well. Let's move on to the next extract. Next extract की तरफ बढ़ते हैं, guys. Second extract की तरफ. Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard, and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up, of chitterings and tremor of wings and trillings. Got it? So guys, सबसे पहला जो question है वो है कि what is goldfinch? Goldfinch क्या होती है, guys? Goldfinch is a kind of bird. Goldfinch is a kind of bird. Got the point? एक bird होती है, guys. Bird की type होती है. Question number second is, what does the poet mean by twitching chirp? इसका आंसर फटाफट बताइए. We are waiting for 10 seconds. We are waiting for everyone to answer this question. Quickly से respond कीजिए. What is the meaning of twitching chirp? Quickly, guys, do let us know the answer. Twitching chirp का मतलब क्या होता है, guys? Twitching chirp का मतलब होता है, देखिए चिर्पिंग तो क्या होती है, नॉइस जो कौन करते हैं, गाइस? बर्ड्स करते हैं. ट्विचिंग चर्प का मतलब हो गया, गाइस, अ सडन नॉइस. अ सडन नॉइस मेड बाय बर्ड. एंड हु इज द बर्ड हियर, गाइस? बर्ड कौन है यहाँ पे? गोल्डफिंच. एज आई टोल्ड यू, गोल्डफिंच इज अ काइंड ऑफ बर्ड. Question number 3 is, which poetic device has been used in sleek as a lizard? Guys, as I told you in my previous lecture, whenever there is a comparison using the word like or as, जब भी comparison हो, so what your answer is simile. Got it? So guys, ऐसे 30 poetic devices, or you can say 30 literary devices have been prepared by us. अगर आपको उन 30 पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइस को पढ़ना है, all you need to do is you need to go to a website, that is www.brainylads.in. आपको वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाके वहाँ पर एक सर्च बॉक्स मिलेगा आपको. सर्च बॉक्स में आपको लिखना है पोएटिक डिवाइसेस. जैसे ही आप पोएटिक डिवाइसेस लिखेंगे तो देयर कम्स अ पोस्ट. एक पोस्ट आएगा, उस पोस्ट में नोट्स भी हैं
अलोंग विद दैट नोट्स उसमें एक वीडियो भी है, वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में भी है, अभी रिसेंटली अपडेट किया हमने उसको। सो 30 पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में है। वंस यू गो थ्रू दिस वीडियो और द नोट्स ऑफ पोएटिक और लिटरेरी डिवाइसेस, बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, उसके बाद आपको क्लास 10th 11th 12th इन 3 क्लासेस के लिए लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? सो विद आर एश्योरेंस वी एश्योर यू कि एक बार उस वीडियो को देखिए, उस नोट्स को गो थ्रू कीजिए, आपको दोबारा लिटरेरी डिवाइसेस क्लास 10th इनफैक्ट 9th के लिए भी 9 10th 11 12th के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th इज व्हाट क्रिएट्स द नॉइज इन द लेबरनम ट्री? कौन नॉइज क्रिएट करता है गाइस? कौन है उसमें शोर मचाने वाला? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यंग वंस ऑफ द बर्ड। एंड हु इज द बर्ड? बर्ड कौन है गाइस? गोल्डफिंच। गॉट इट? तो उसके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, दे मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, वो बहुत शोर करते हैं। व्हाट डज द वर्ड चिटरिंग मीन? चिटरिंग का मीनिंग बताइए फटाफट गाइस, क्विकली एज पॉसिबल। व्हाट इज चिटरिंग? तो गाइस चिटरिंग क्या होती है? चिटरिंग होती है आपकी हाई पिच नॉइस। इसका मीनिंग क्या होता है गाइस चिटरिंग का? द मीनिंग ऑफ चिटरिंग इज हाई पिच नॉइस। जो तीखी आवाज होती है, जो तीखा शोर होता है गाइस, उसको क्या बोलते हैं? हाई पिच नॉइस। और उसका सिनोनिम क्या है गाइस? चिटरिंग। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ बेबी गोल्डफिंच ऑन देयर मदर्स अराइवल? उनका क्या रिएक्शन होता है गाइस? दे गेट एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। दे स्टार्ट ट्रैमरिंग देयर विंग्स, वो अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगते हैं। स्टार्ट मेकिंग नॉइसेस, शोर शराबा करने लगते हैं। और अगर हम बोले तो द होल ट्री ट्रैम्बल्स, पूरा ट्री कांपने लगता है विद देयर मूवमेंट। सो चारों के चारों आंसर्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। गॉट द पॉइंट? एक बार आंसर्स मैच कर लेते हैं। व्हाट इज गोल्डफिंच? अ काइंड ऑफ बर्ड। व्हाट इज ट्विचिंग चर्प? सडन नॉइस मेड बाय द बर्ड। व्हिच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन क्वेश्चन नंबर 3? दैट इज सिमिली। आगे देखते हैं कौन शोर करता है? यंगर वंस ऑफ गोल्डफिंच, हाई पिच नॉइस, and they all are super excited, ecstatic। आप कोई भी adjective यूज कर सकते हैं which shows happiness। Got it? Let's move on to stanza 3। stanza 3 पे पढ़ते हैं guys। The whole tree trembles and thrills, it is the engine of a family, she stalks it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask। Got it? तो what makes the tree tremble? tree को कौन कांपने पे मजबूर कर देता है? तो गाइस हमें पता है यंगर वंस, और यू कैन से द यंग वंस ऑफ गोल्डफिंच। यंग वंस का मतलब क्या होगा? जो गोल्डफिंच के बच्चे हैं गाइस, छोटे पक्षी हैं, दैट मेक द ट्री ट्रेम्बल। विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली? तो गाइस यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है किसी चीज का इंजन से, और जब भी कंपैरिजन होता है, अगर कंपैरिजन में लाइक और एज हो तो क्या बन जाता है गाइज? वो सिमिली है। लेकिन यहाँ तो ना तो लाइक है ना एज है, तो गाइज ये सिमिली नहीं होगा। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? दैट वुड बी मेटाफर। हु हैज बीन कॉल्ड द इंजन ऑफ अ फैमिली? गोल्डफिंच को क्या कहा गया है गाइज? इंजन कहा गया, क्योंकि वो ही पूरी फैमिली का ट्री यानी पूरी फैमिली को चलाती। व्हाट डज द वर्ड स्टॉक्स मीन? फटाफट बताइए गाइज। इसमें एक वर्ड है शी स्टॉक्स इट फुल। यहाँ पर जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टॉक्स, ये आपको बताना है गाइस। फटाफट क्विकली से बताइए। गॉट इट गाइस? तो स्टॉक्स का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक्स का मीनिंग होता है स्टर्स अप, पूरा हिला के रख देना। वो भी अपने बच्चों को आती है, पूरा फीड करती है, उनकी पूरी केयर करती है, उनको खाना खिलाने के बाद वंस अगेन लॉन्चेस टू द स्काई। गॉट इट? स्टॉक्स का मतलब क्या है गाइस? स्टॉक्स का मतलब हो गया स्टर्स अप। Let's move on to question number 5th। What does the poet mean by barred face? Barred face क्या होता है guys? एक मास्क होता है, इट्स अ काइंड ऑफ मास्क होता है स्ट्रिप्स वाला। चेहरे पे सारी स्ट्रिप्स हैं, लाइनें लाइनें हैं। उसके गोल्डफिंच को फेस को क्या बोला गया गाइस? यहाँ पर बार्ड फेस बोला गया।
गॉट इट? फेस फुल ऑफ स्ट्रिप्स, जो पूरे लाइनों से भरा होता है, धारियों से भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं गाइस? बार्ड फेस बोलते हैं। व्हाट डज द गोल्डफिंच हाइड इन हर मास्क? वो अपने बार्ड फेस के पीछे क्या छुपाती है गाइस? हर इमोशंस। कौन से इमोशंस है गाइस? आपको पता है, शी इज गोइंग टू द इनफाइनाइट स्काई, शी इज गोइंग टू ब्रिंग समथिंग फॉर हर यंगर वंस। और जब वो जा रही है, शी इज अफ्रेड, उसको डर भी है वेदर शी वुड बी एबल टू सी हर यंगर वंस और नॉट। तो वो अपने जो रियल इमोशंस है, जो सैडनेस है, वो उसको बार्ड फेस के नीचे छिपा लेती है। कौन गाइस? गोल्डफिंच। वंस अगेन लेट मी टेल यू, गोल्डफिंच होता क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड। गॉट इट? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट को देखते हैं गाइस, स्टैंजा नंबर 4 है। देन विद ईरी डेलिकेट whistle chirp whisperings, she launches away towards the infinite. Infinite is, that is unlimited, and the laburnum subsides to empty. So we talked about the similarity at the beginning of the poem as well as at the end of the poem. So end में भी क्या हो जाता है guys? Silence हो जाता है all around laburnum top. Got it? Let's have a look at the questions. Questions देखते हैं एक एक करके. The question number first is guys, which poetic device has been used in whistle chirp whisperings? guys poetic devices से बहुत सारे questions आने वाले हैं, तो हमारा जो poetic devices पर lecture बना हुआ है, do not forget to share it, do not forget to watch it, उसको देखिए, share भी कीजिए। कौन सी literary device यूज़ की गई है, कौन सी poetic device यूज़ की गई है? poem लेबरनम द लेबरनम टॉप की लाइन whistle chirp whispering guys, WW का यूज़ हुआ है। जब भी consonant repeat होते हैं, we have told you many times before, तो वहाँ क्या हो जाता है guys? alliteration हो जाता है। alliteration is the right answer. Got it? What does the poet mean by she launches away? she launches away का मतलब है she flies, वो उड़ जाती है। she goes to bring food, वो खाना लाने के लिए, to bring food for her younger ones, वो उड़ जाती है। launches away का मतलब है flies away। infinite का मतलब we have already discussed, that is endless। किसको कहा गया इनफाइनाइट गाइस? यहाँ पर स्काई को कहा गया इनफाइनाइट। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय लेबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी? क्या मतलब है इसका इस लाइन का मीनिंग पूछा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी? इस लाइन का मतलब है गाइस, वंस अगेन देयर कम्स साइलेंस ऑन द लेबरनम टॉप। क्या हो जाता है एक बार फिर? लेबरनम टॉप। जो एनर्जी आती है दैट कम्स विद गोल्डफिंच, और उसके जाने के साथ वो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से चली जाती है। तो साइलेंस रिमेन्स बोथ एट द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द पोम। नेक्स्ट वन इज, वेयर डज द गोल्डफिंच गो अगेन? गोल्डफिंच गोज टुवर्ड्स द स्काई, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन गोल्डफिंच लीव्स? जब वो जाती है गोल्डफिंच तो क्या होता है? वंस अगेन लेबरनम टॉप सबसाइड्स टू एम्प्टी, फिर साइलेंस हो जाता है कहाँ पे गाइस? लेबरनम टॉप के अंदर। So guys, those were the extracts. Let me tell you exactly how many extracts have we gone through. If I'm not wrong, we have gone through 4 stanzas, 4 extracts. अगर आपको अच्छा लगा हो guys, do not forget to share it with your friends. Do subscribe to our channel. Do press the bell icon so that you can get regular updates from us. Thank you very much for joining us. Have a nice day.